اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر محمد عقیل شہزاد، اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں برج عقرب اسکارپیو برچی کراچی کو 2022 کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ 2022 برج عقرب اسکارپیو والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین سے ایک بات کرنا چلوں کہ اول اور آخر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہونا وہی ہے جو میرے مالک کو منظور ہوگا۔ یہ ایک اسٹرالوجی کا اندازوں کا سٹارز کا ایک علم ہے۔ سٹارز ہماری زندگی میں کیا اثر انداز رکھتے ہیں، کیا یعنی کہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسٹرالوجی از اے گائیڈنس، اسٹرالوجی از اے سائنس، تو اس حوالے سے ہم پریڈکشن کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پروگرام دیکھنے کے بعد مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ناظرین، برج عقرب اسکارپیو 21 اکتوبر سے 21 نومبر، جن کی بھی برتھ اس 21 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان ہوگی، ان کا شمسی برج سن چارٹ برج عقرب ہوگا۔ برج عام طور پر اسٹرالوجر حضرات بتانا مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ اپنا قمری زائچہ اور اپنا برتھ چارٹ لازمی دیکھیں، کیونکہ جو اہمیت آپ کے برتھ چارٹ پیدائش زائچے کی ہے، جو کہ آپ کے ٹائم سے نکلتا ہے، آپ جس ٹائم پیدا ہوئے ہیں اس ٹائم کے جو زائچہ ہوگا وہ آپ کا پیدائشی زائچہ ہوگا۔ اس ٹائم جو سیارگان کی پوزیشن ہوگی وہ آل اوور لائف آپ کی زندگی میں اثر رکھے گی۔ پیدائش زائچے کے وقت اگر کوئی سیارہ مضبوط پڑا اور جس گھر میں مضبوطی رکھے گا، وہ تمام زندگی اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گا، بہت عروج پہ لے کے جائے گا۔ اور اگر پیدائش زائچے کے وقت سیارہ اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے دور اکبر میں، اپنی مہادشا میں اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے ناقص اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تو برج عقرب اسکارپیو والوں کے لیے جو دوست بروج ہیں وہ ہے برج جدی، برج حوت، برج سرطان، یعنی کہ کیپریکون، پائسس اور کینسر۔ اور اسی طرح اس کے اینیمی جو بروج ہیں، دشمن بروج ہیں، وہ ہے برج حمل اور برج جوزا، یعنی کہ ایریز اور جیمنائی۔ اس کے بعد اس کا اپنا مزاج برج کا پانی ہے، اور پانی بروج کے مزاج کی دوستی اپنے بروج پانی بروج سے ہوتی ہے یا مٹی بروج سے ہوتی ہے۔ آتشی اور ہوائی بروج کے مزاج کے بروجوں سے اس کی دوستی نہیں ہوتی، اس کا مزاج نہیں ملتا، چاہے کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ تو آل اوور اگر دیکھا جائے برج عقرب 2022 کے حوالے سے، تو ان کا سال جو ہے ایک بہت اچھا اور ایک لکی سال ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سال بھر دو بڑے سیارگان بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد پہلے آل اوور اگر دیکھا جائے زندگی کی ہم تمام پہلوؤں کو ان 12 گھروں سے دیکھتے ہیں۔ ہر گھر اپنی اپنی ایک الگ منصوبات سے منسوب ہوتا ہے، ہر گھر کے اپنے اپنے ایک الگ اثرات ہوتے ہیں، اس کے سٹارز ہوتے ہیں، وہ کیا اثرات کیا پھل دیتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ برج عقرب پہلے گھر کا مالک سیارہ اور چھٹے گھر کا مالک سیارہ مریخ کیا ہے۔ برج عقرب کا پہلے گھر کا مالک سیارہ مریخ ہے۔ جن کا بھی برج عقرب ہے، قمری زائچہ یا برتھ چارٹ، ان کا پہلے گھر کا مالک سیارہ مریخ ہوگا۔ تو مریخ، مارس، منگل۔ مریخ ہماری ایک باڈی انرجی ہے۔ مریخ از اے سولجر، مریخ از اے پولیس مین، مریخ از اے ڈینٹل سرجن، ڈاکٹر۔ مریخ جو ہے آپ کی ڈیزائر ہے، چیزوں کو اچیو کرنا، اپنے گول کو اچیو کرنا، اپنی چیزوں کو حاصل کرنا، اپنی منزل تک پہنچنا، غصہ کرنا، غصے میں کسی کو مار دینا، بنا سوچے سمجھے کسی سے جھگڑا کر جانا، یہ تمام مریخ کے زمرے میں آتا ہے۔ جسم میں جتنے بھی باڈی کے کٹ، سائن، جلنا، یہ تمام مریخ کے زمرے میں آتا ہے۔ مریخ ایک جلاد فلک سیارہ بھی مانا جاتا ہے۔ مریخ آپ کی کریج ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ کی ڈیزائر، آپ کی فورس، آپ کی فائٹ، آپ کو ایتھلیٹ بناتا ہے۔ مریخ اگر برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود ہو تو آپ کو فوج کا سپاہ سالار بنا سکتا ہے، آپ کو پولیس مین، ایک بہت نڈر اور ایک بے باک پولیس آفیسر بنا سکتا ہے۔ مریخ سیارہ اگر پیدائش زائچے میں اچھا پڑا ہو تو آپ بہت بہادر ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، چیزوں کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کا آپ ذہن بنا لیں آپ چیز کو حاصل کر کے لیں گے۔ مریخ سیارہ انجینئر، مشینری ورک، مینوفیکچرنگ ورک، ہتھیار، دھات، میٹل، ان چیزوں میں بھی آپ کو مہارت دلواتا ہے۔ مریخ کا کام بھی ان چیزوں سے منسوب ہے۔ مریخ جو چیزیں آگ کے آگے کھڑی ہو کے بنائی جائیں، جیسے کوک ہو گیا، فوڈ جو سی آگ کے آگے بنائی جاتی ہیں، ان کا اس شعبے سے بھی یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ مریخ سیارہ اگر آپ کے پیدائش زائچے میں اچھی پوزیشن میں نہ موجود ہو، اگر یہ ریورس ہو، ریٹروگریڈ ہو، یا حالت حبوط یا زوال میں پڑا ہو، تو آپ کو سست، لیزی بناتا ہے۔ مریخ اگر ایسی پوزیشن میں موجود ہو تو آپ کو یعنی کہ بلا وجہ، بلا سوچے سمجھے جھگڑ جانا، الجھ جانا کسی سے، بلا وجہ کسی کو شوٹ کر دینا، مار دینا، یہ تمام مریخ کے زمرے میں آتا ہے۔ مریخ اگر اچھی پوزیشن میں موجود نہ ہو
तो बॉडी एनर्जी को बहुत हद तक कम कर देता है। चीज़ों को अचीव करना, चीज़ों की डिज़ाइन करना इंसान के अंदर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूट रहती ही नहीं, बल्कि ये फसादी, बद इखलाक और ख़ुद गर्ज भी बनाता है, ज़िद्दी, हासिद और गलत काम भी करवाता है। तो ये मरीख सियारे की खसलत है। तो बुर्ज अकरब पहले घर का मालिक सियारा और छठे घर का मालिक सियारा मरीख है। और मरीख सियारा पहला घर आपके जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हर घर अपनी अपनी अहमियत रखता है। हर घर जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अलग अलग मनसूबात से मंसूब है। तो पहला घर आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक, आपका ऑरा, आपकी नेचर, आप कैसे दिख रहे हैं। हर नए काम का आगाज जायचे में पहले घर से देखा जाता है। इसी तरह जायचे में पहला घर जो सा होता है वो आपका बिहेव है, आपकी बॉडी है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जहनी कुव्वत। पहला घर आपकी इज्जत और शरफ, आपकी बुलंदी, ऊंचा मकाम, बुजुर्गी, ये तमाम पहले घर से मंसूब होता है। यानी कि अगर आप खुद पहला घर, अगर आप खुद मजबूत होंगे, पहले घर का मालिक सियारा अच्छा पड़ा होगा, तो तमाम चीज़ें आप ज़िंदगी में अचीव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ज़ाती तौर पर सुस्त हैं, आपकी शख्सियत कमज़ोर है, तो आपको किसी काम करने को दिल नहीं करेगा। आपको पहला घर सर से रिलेटेड होता है। अगर पहले घर का मालिक सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो सर में दर्द, डिप्रेशन, टेंशन, ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और इसी तरह जायचे में छठा घर बहुत अहमियत रखता है। छठा घर आपकी नौकरी है, आपका मुकदमाबाजी, कोर्ट लिटिगेशन, आपका कर्जा, आपकी दुश्मनी, आपकी बीमारी और आपकी इन तमाम चीज़ों से ये छठा घर मंसूब है। छठा घर आपकी स्मॉल पेट्स, एनिमल से भी रिलेटेड है। छठा घर आपकी क्राइम से भी रिलेटेड है, यानी कि जितने जराइम होते हैं वो छठे घर से देखे जाते हैं। तो पहले और छठे घर का मालिक सियारा जायचे में बुर्ज अकरब वालों के लिए सियारा मरीख है। और मरीख सियारा साल के आगाज़ में अपने ही घर हालत अरूज में मौजूद होगा। शख्सियत के हवाले से बहुत ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे नौकरी में, और आपकी हिम्मत, आपकी शख्सियत बहुत बुलंदी भी होगी। जिस काम को करेंगे आपका काम होगा। रुके हुए काम जो उनसे हैं वो होते हुए मुमकिन नज़र आएंगे, क्योंकि मालिक सियारा मरीख है। साल के आगाज़ में लगन में हालत अरूज में मौजूद होगा अपने ही घर। इसके बाद दूसरे घर में बुर्ज कोस में मौजूद रहेगा। 16 जनवरी से 25 फरवरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। इस दौरान फैमिली के साथ आप चल सकते हैं, फैमिली के साथ अटैच हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन अय्याम में फैमिली के साथ आप बिल्कुल एक खुशगवार माहौल में रहें, क्योंकि दौलत के घर होगा मरीख सियारा, रुपये पैसे की तरफ से भी यहाँ पे अच्छे असबाब पैदा कर सकता है। इसके बाद हालत शरफ में 26 फरवरी से 6 अप्रैल पुरजद्दी में तीसरे घर मौजूद रहेगा। बहन भाइयों दोस्तों की मुकम्मल सपोर्ट रहेगी। आप वैसे भी मरीख सियारा एक हिम्मत, करेज, डिज़ायर का नाम है, बहादुरी का नाम है। तो तीसरा घर भी जायचे में जो सा आपकी हिम्मत से रिलेटेड है, बहादुरी से रिलेटेड है। तो यानी कि मरीख शख्सियत बहुत अरूज पे रहेगी। जिस काम को भी करेंगे आपका काम होगा। नौकरी के हवाले से बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। कोर्ट लिटिगेशन अगर आपकी किसी किस्म की चल रही है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, और बीमारी से सेहतियाब भी पा सकते हैं आप। इसके बाद जो मरीख से आ रहा है वो 7 अप्रैल से 15 मई तक, इस दौरान ये नाकस पोजीशन में चौथे घर में मौजूद होगा। चौथे घर में मौजूद होने के सबब प्रॉपर्टी के हवाले से कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। आप अपनी सवारी से लेकर कोई टेंशन क्रिएट कर सकते हैं किसी के साथ। घरेलू, चौथा घर घरेलू ज़िंदगी का सुख होता है, उसमें थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि चौथे घर में मरीख सियारा अच्छा फल नहीं देगा। इसके बाद ये बुर्ज हूत में आएगा। 16 मई से 25 जून 5वें घर में मौजूद रहेगा, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और मुश्तरी के साथ मौजूद रहेगा। दो दोस्त सियारगान आपस में मिलेंगे। यहाँ पे आपकी शख्सियत को अरूज रहेगा। नौकरी में छठे घर की मनसूबा और पहले घर की मनसूबा जो मैंने आपको बताई, उस हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त रहेगी और उसमें कामयाबी मिलेगी। इसके बाद ये 26 जून से 9 अगस्त अपने घर छठे घर में हालत अरूज में मौजूद रहेगा, यानी कि शख्सियत को 4 चांद लगेंगे। हर काम होता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि लगन मजबूत, पहले घर का स्टैंडर्ड मजबूत होगा तो तमाम रुके हुए काम मुमकिन होते नजर आएंगे। जिस काम को भी हाथ डालेंगे आपका काम होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में प्रमोशन के चांस मुमकिन हो सकते हैं, नई नौकरी मिलने के चांस हो सकते हैं। कोर्ट लिटिगेशन अगर कोई चल रही है उसमें कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद ये 10 अगस्त से 14 अक्टूबर तक 7वें घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान ये थोड़ा सा वाजी ज़िंदगी में कोई टेंशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मरीख का काम है लड़ना झगड़ना, चीज़ों को बिना सोचे खर्चा। तो यहाँ पे ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे मत कोई, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो यहाँ पे अपनी शादी का फैसला सोच समझ कर कीजिए, मत जज्बात में आए। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो ज़वाजी ज़िंदगी में कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा मुमकिन हो सकता है, तो इस हवाले से आप एहतियात करते हैं। इसके बाद मरीख सियारा 15 अक्टूबर से आगे नक्स पोजीशन में 8वें घर होगा।
यहाँ पे शख्सियत को कुछ परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। यहाँ पे आप 8वें घर में हादसा मुमकिन हो सकता है, कोई ना कोई आपको आपकी सेहत के हवाले से परेशानी आ सकती है। इस दौरान बाहर के खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। इस दौरान कर्जे लेने का मत सोचें और मत किसी से बिला वजह उलझे लड़ाई झगड़ा करें। मत यहाँ पे किसी किस्म की आपके साथ लड़ाई झगड़े में कोई कोर्ट लिटिगेशन भी बन सकती है, क्योंकि 8वें घर में मरीख सियारा मौजूद होगा। तो इस दौरान आप एहतियात बरतें और कोशिश करें रेड कलर लाल रंग से मंसूब चीज़ों का सदका दें। कोशिश करें गोश्त के छोटे छोटे पीस बनाकर उनका सदका दें, ताकि आप किसी हादसे से बच सकें, किसी लड़ाई झगड़े से भी आप यहाँ पर बच सकें। इसके बाद जायचे में दूसरा घर और 5वां घर मालिक सियारा मुश्तरी। दूसरा घर आपका जायचे में मालिक सियारा मुश्तरी है। दूसरा घर आपकी दौलत है, बैंकिंग, सेविंग, आपकी इनकम, आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी स्पीच, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू। और इसके बाद जायचे में 5वां घर जो है वो औलाद से रिलेटेड है, बैंक आपकी तालीम से रिलेटेड है, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, आपकी हंसी मजाक तफरीहात, आपकी शोबिस की दुनिया। इन तमाम चीज़ों से जायचे में ये 5वां घर मंसूब है। 5वां घर आपका इश्क मोहब्बत है। 5वां घर जायचे में आपका स्टॉक मार्केट, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी हुआ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है 5वां घर। तो मुश्तरी सियारा साल के आगाज़ में 11 अप्रैल तक चौथे घर में मौजूद रहेगा। तो मुश्तरी 12 अप्रैल से साल के आखिर तक 5वें घर हालत अरूज में मौजूद रहेगा। तो दूसरे और 5वें घर की मनसूबात के हवाले से यहाँ पर बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी आएगी। रुपये पैसे की तरफ से आपको बिल्कुल तंगी नहीं होगी। आमदन के मुख्तलिफ ज़राए बनेंगे। यहाँ पे फैमिली वैल्यू बिल्ड होगी आपकी यहाँ पर। उसके अलावा आप अपनी स्पीड से दूसरों को अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं। और इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशखबरी आ सकती है। नामक जो यानी कि बुर्ज अकरब वाले जो बे औलाद जोड़े हैं उनको अल्लाह ताला यहाँ पे औलाद की नेमत से नवाज सकता है। इंशाअल्लाह ताला मेरा मालिक बहुत बड़ा है, वो यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा, क्योंकि सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में हालत रूज में मौजूद होगा। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से यहाँ पे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खुशखबरी पाई जाएगी। जो बुर्ज अकरब के अफराद है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट वाले अफराद जो इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पे कामयाबी पा सकते हैं। तालीम के हवाले से अच्छे फैसले होंगे, तालीम में कामयाबी मुमकिन होगी। खेलों में दिलचस्पी रखने वाले लोग खेलों से यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी खोलना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मुश्तरी एक खुशियों का और एक अमीरी का सियारा माना जाता है। तो मुश्तरी जब 5वें घर में 13 साल बाद यहाँ पे हालत अरूज में आया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे मुश्तरी अपने घर में 5वें घर में बैठा हुआ 5वीं 7वीं और 9वें घर को भी देखेगा और उन घर की मनसूबात को भी चार चांद लगाएगा। उन घर की मनसूबात के हवाले से भी आपको खुशखबरियाँ देगा। इसके बाद जायचे में तीसरा और चौथा घर जो कि ज़ुहल सियारे से रिलेटेड है और ज़ुहल सियारा हालत अरूज में अपने घर तीसरे घर मौजूद रहेगा। ज़ुहल सियारा 28 अप्रैल से 10 जुलाई तक चौथे घर आएगा और ये भी यहाँ पे भी अपने घर हालत अरूज में मौजूद होगा। उसके बाद 11 जुलाई से साल के आखिर तक 17 जनवरी 2023 तक तीसरे घर पुरजद्दी हालत अरूज में मौजूद रहेगा। अब जायचे में तीसरा घर गया। तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, आपकी हॉबीज़, आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार। तीसरा घर आपके मीडिया से रिलेटेड है। तीसरा घर आपकी हैंड स्किल से रिलेटेड है। जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं उनका जायचे में तीसरे घर से मंसूब होता है। तीसरा घर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा घर आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी ऑफिस मीटिंग, आपका ऑफिस टीम वर्क। तो ये सब चीज़ें तीसरे घर से मंसूब है। तीसरे घर में आपकी हिम्मत, बहादुरी, आपकी हॉबीज़, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें जायचे में तीसरे घर से मंसूब है। इसके अलावा जायचे में चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मकान, आपकी जायदाद, आपका फार्म हाउस, आपकी वालदा से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो घरेलू सुख दे वो जायचे में तीसरे घर से मंसूब है, चौथा घर से मंसूब है। चौथा घर जायचे में आपकी घरेलू अशिया जिससे आपको सुख मिले। तो जायचे में जब तीसरे और चौथे घर का मालिक हालत अरूज में मौजूद है तो आपको यहाँ पे दोस्तों बहन भाइयों की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट रहेगी। आप इसके अलावा बहन भाइयों की घर में किसी की शादी हो सकती है। बहुत अच्छा यानी कि ये तीसरे घर की मनसूबात के हवाले से प्लस रिजल्ट देगा। और सबसे बड़ी बात कि जो जिनका घर नहीं है बुर्ज अकरब वालों का यहाँ पे वो अपना ज़ाती घर ले सकते हैं, क्योंकि चौथे घर का मालिक तीसरे घर में हालत अरूज में मौजूद रहेगा। क्योंकि ये 30 साल बाद ये वक्त आए। इसके बाद दोबारा जब ये दल्लू में आएगा 2.5 साल काम करेगा तो दोबारा 30 साल बाद आएगा ये वक्त। तो अभी फिल वक्त हालत अरूज में अपने घर मौजूद है तो यहाँ पे अपना घर लिया जा सकता है। बुर्ज अकरब वाले ज़रा सी हिम्मत करेंगे, बहन भाइयों दोस्तों की सपोर्ट रहेगी, दौलत का मालिक सियारा मुश्तरी हालत अरूज में मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आप अपना घर ले सकते हैं। अगर आपका घर ऑलरेडी है तो आप दूसरा घर ले सकते हैं। यहाँ पे अपना फार्म हाउस खरीद सकते हैं, नई सवारी खरीद सकते हैं
वालदा की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं आप, घर को खूबसूरत कर सकते हैं, घर में नई अशिया आ सकती हैं जिनको आपको सुख हो। तो ये तमाम चीज़ें तीसरे और चौथे घर की मनसूबात आपको चार चांद लगाएंगी। तो ज़ोहल सियारा हालत अबूज में मौजूद रहेगा सारा साल। इसके बाद जायचे में 7वां घर और 12वां घर मालिक सियारा ज़ोहरा। 7वां घर आपकी मंगनी, शादी, निकाह, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, आपका शराकती कारोबार, आपकी ऑपोजिट वर्ल्ड, आपकी बारगेनिंग। और ये सियारा ज़ोहरा सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। जिन बुर्ज अकर वालों की शादी नहीं हुई, यहाँ पे शादी का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, शादी के बहुत अच्छे चांस यहाँ पे मौजूद हैं और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं। अगर आप अपना दोनों का जायचा लाजमी देखिएगा कि दोनों के आपस में जायचे मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 7वें घर का मालिक सियारा अगर कमज़ोर हो तो सारी ज़िंदगी ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से परेशानियाँ, टेंशन रहती हैं। लेकिन ज़ोहरा सियारा ऑल ओवर अगर देखा जाए तो छठे घर में नाक़िस रहेगा, छठे घर में आएगा 23 मई से 16 जून, और बुर्ज जोज़ा में आएगा 8वें घर 13 जुलाई से 5 अगस्त तक। इन अयाम में कोशिश कीजिए कि निकाह की रसूमात मत अदा कीजिए। बाकी आल ओवर कमर दरकर के अयाम में भी निकाह की रसूमात मत अदा कीजिए। ये अयाम नाकिस होते हैं क्योंकि 7वें घर का ताल्लुक शादी से है, मंगनी निकाह से है। तो कोशिश कीजिए। बाकी सारा साल ज़ोहरा सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा और मुश्तरी और ज़ोहर ऑलरेडी दो बड़े सियारदान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो शादी के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी आपको यहाँ पे। इसके बाद जायचे में 8वां घर और 11वां घर मालिक सियारा अतारत। अतारत सियारा आपका जो 8वें घर का मालिक सियारा, अतारत भी सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। 8वें घर का मालिक सियारा है और 11वें घर का मालिक सियारा। 11वां घर आपकी वाबस्ता उम्मीदों का है, आपकी उम्मीदें पूरी होने का है, आपकी फेस वैल्यू से रिलेटेड है। 11वां घर आपके बड़े भाई से रिलेटेड है, आपकी सेविंग से है 11वें घर का ताल्लुक। आपकी अगर आप कोई NGO चला रहे हैं उसका ताल्लुक 11वें घर से है। 11वें घर का ताल्लुक आपकी यानी कि एक फेस वैल्यू, एक मशहूर होने का माना जाता है कि यानी कि कोई रैली टाइप, कोई हजूम, ये तमाम 11वें घर से मंसूब है। सियासत के हवाले से ये घर बड़ा अहमियत रखता है क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो लोगों को इकट्ठा करना, हजूम, रैली, तो ये तमाम चीज़ें 11वें घर से मंसूब होंगी, आपको फ़ायदा देंगी, आपकी फेस वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें 11वें घर से मंसूब है। तो मालिक सियारा अतारत देखा जाए तो सारा साल 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करेगा। तो अतारत सियारा भी छठे और 8वें, जब घर छठे और 12वें घर में होगा तो नाक़िस असरात मुरतब करेगा। 8वां घर इसका अपना ज़ाती घर है, यहाँ पे इतने नेगेटिव असरात मुरतब नहीं करेगा। तो बुर्ज हमल में जब ये आएगा, बुर्ज हमल में आएगा 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, और उसके बाद बुर्ज मिज़ान में आएगा 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। इन अयाम में तारत सियारा नाक़िस होगा। यहाँ पे आमदन कम, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ अनबन बन सकती है। और इसके अलावा इन अयाम में कोई तरह नाकस रिजल्ट जायचे में नहीं आएंगे क्योंकि बड़े सियारतन बहुत अच्छी पोजीशन में। आज इन अयाम में आप ग्रीन रंग की अशिया का लाजमी तौर पर सदका दें ताकि जो सी आपकी अखराजात में कुछ कमी आए और अखराजात हद से ज़्यादा ना हो। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए 9वां घर आला तालीम का है, आपकी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से मंसूब है। 9वां घर दीन से रिलेटेड होता है, मज़हब से रिलेटेड होता है। 9वां घर आपकी आला तालीम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा 9वां घर में आप अपने ही मुल्क में या तो हायर डिप्लोमे से भी रिलेटेड है। तो 9वें घर का मालिक सियारा कमर है, मून, चंद्रमा। कमर एक माह में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। कमर एक बहुत ही जज्बाती और एक बहुत ही मोहब्बत वाला सियारा माना जाता है। तो कमर आपके जायचे में छठे, 8वें और 12वें घर में जब भी हर माह आएगा इन अयाम में नाकिस फल देगा। इन अयाम में आप बैरून मुल्क के लिए अप्लाई मत करें, मत फाइल सबमिट कराएं, क्योंकि इन अयाम में अगर आप फाइल सबमिट वगैरह करवाएंगे तो आपके साथ एजेंट धोखा कर सकता है, चीट हो सकती है आपके साथ। बाकी ऑल ओवर कमर दरकर के अयाम में भी बैरून मुल्क अप्लाई के लिए मत करें। बाकी ऑल ओवर हर माह बाकी बुर्जों में अच्छा फल देगा। बैरून मुल्क आला तालीम के रास्ते आपके लिए खुले पड़े हैं। आप बैरून मुल्क के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जायचे में 10वां घर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, हर घर की अहमियत है। 10वां घर आपकी हालत अरूज का है, इज़्ज़त व शरफ, बुलंदी, मर्तबा, ऊंचा मकाम, बाहर की परफॉर्मेंस, घर के बाहर की, आपका कारोबार से रिलेटेड है, रोज़गार से रिलेटेड है, आपके वालिद साहब से रिलेटेड है, आपकी मुआशरत से रिलेटेड है, आपको ज़िंदगी में क्या ओहदा मिला, रेपुटेशन, स्टेटस, कैरियर, हाई अथॉरिटी, सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसका मालिक सियारा सूरज है, सन है। तो सूरज सियारा हर माह एक बुर्ज में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। तो सूरज सियारा जब जायचे में 8वें और 12वें घर में नाकिस रहेगा। ये 8वें घर में ये आएगा 14 जून से 14 जुलाई तक, और उसके अलावा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर।
ان ایام میں کاروبار میں ٹینشنز کریٹس آپ ہو سکتی ہیں. تو ان ایام میں اگر کوئی آپ کوئی بڑی ڈیل سائن کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں ساری تمام کی تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کریں اور کوشش کریں کہ ان ایام میں صدقہ لازمی دیں. باقی آل اوور سارا سال سورج سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا تمام 10 گھروں میں جو اس کے بقایا رہتے ہیں. تو ان ایام میں کاروبار میں ترقی، نئے کاروبار کا آغاز، اس میں ترقی، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی عزت، کیریئر، شہرت، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کی ہوا پذیر ہوں گی. تو ناظرین آج ہم نے سال 2022 کے حوالے سے برج اقرب کو ڈسکس کیا اور اس کے پتھر کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو سٹون آپ پہنے سیارہ لگن کا مالک برج سیارہ مریخ ہے. تو مریخ کا جو پتھر ہے وہ مونگا ہے اور اس کے علاوہ 5ویں گھر اور 9ویں گھر کا مالک سیارے کا بھی پتھر آپ پہن سکتے ہیں. تو 5واں گھر مشتری کا ہے، پکھراج پتھر آپ پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ 9واں گھر جو خانہ قسمت سے ریلیٹڈ ہے، 9واں گھر قسمت کا ہوتا ہے، وہ اس کا مالک سیارہ قمر ہے. تو قمر سے موتی پتھر آپ پہن سکتے ہیں. یہ 3 قسم کے پتھر آپ کوئی بھی اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. مگر پتھر پہننے سے پہلے یہ بات ضرور نوٹ رکھیے کہ ابتدائی ذائچے کے وقت آپ کا مشتری کہیں ریورس تو نہیں تھا، ریٹروگریڈ تو نہیں تھا. اگر ایسا تھا تو پھر آپ پکھراج پتھر مت پہنیں. اور مریخ سیارہ اگر ریٹروگریڈ تھا اس کا بھی پتھر مت پہنیں. اگر ریٹروگریڈ نہیں تھا، اچھی پوزیشن میں تھا، پھر آپ اس سے منسوب پتھر پہن سکتے ہیں. تو ناظرین آج ہم نے برج اقرب کو 2022 کے حوالے سے ڈسکس کیا. امید کروں گا آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے، اپنے ذائچے کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے، تو بلا جھجک مجھے ان باکس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم، AM اور PM لازمی لکھیے گا. آپ مجھے اپنا سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب سینڈ کر دوں گا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیگیٹیریس کو 2022 کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.